Hello everyone, welcome to the channel. This is your host Pushpendra Trivedi, and in this video I'm going to tell you how to create LinkedIn ads from scratch. So let's get started. Okay, so guys, you have to firstly log into your LinkedIn ads panel account. Okay, so if you don't have LinkedIn ad panel account, then you just have to log into your LinkedIn profile. All right, after that you will get an option like advertise, and you will get another option in the section of work, which will be something like marketing solutions. All right, so both of the options, the marketing solution and advertise, will redirect you to the same panel of the LinkedIn. And right now I'm clicking on the marketing solutions. Now it will be redirect me to the ad panel account of the LinkedIn. All right, so it has opened a new window and it's showing an option such like create ad. So click on this. Okay, so now we are here on the LinkedIn Ads Manager. All right, so if you wanted to learn how you can create a LinkedIn ad, right? So firstly, we have to know what is the sequence of creating an ad in the LinkedIn Ad Manager. In respective of other ad managers like Facebook, we have to just create a campaign, then after an ad set, and then after an ad. But in the LinkedIn ad manager, you have to create a campaign group first. After that, in that group, you have to create separate campaigns, and under the section of separate campaigns, you can create different type of ad sets, and in the set of different ad sets, you can create multiple ads also. All right, so what is the hierarchy of our sequence level of ads? The first one is campaign group. So firstly we have to create a campaign group here, but before creating a campaign group you have to create an ad account, and for creating an ad account you must have a LinkedIn page. All right, so if you don't have a LinkedIn page right now, then you can link any other page of your clients or your friends whom access is given to you. All right, but I will suggest you to create your own LinkedIn page so that it will be easier for you to access your page and ad manager at simultaneously. All right, so firstly you have to create a account here. For creating an account you have to click here the option create account. All right, after that you have to give your account a name such as Pushpendra ads account. All right, after that you have to select the currency of your ad account, by like in which currency you will pay to the LinkedIn, and which will represent in which country you are residing right now. Okay, so I'm selecting the INR. All right, the INR. After that you have to link your LinkedIn page here. All right, or if you don't have the LinkedIn page, then you can create your new LinkedIn page from this option. Okay, so at the moment I have my ad account, so I'm not creating this ad account. Okay, so here's my ad account, the Pushpains Zivedi, the Pushpains ad account. All right, and my LinkedIn page is already linked with this ad account here. Okay, so let's get started. Here's my LinkedIn ad group. Okay, LinkedIn ad manager, and here as you can see that there are several campaign groups are already created. So let me just tell you how you can create a campaign group. Okay, to create a campaign group. Okay, so guys, if you wanted to create a campaign group, what you have to do is you have to click on create campaign group. Then after you have to give a name to this campaign group. Let's say XYZ ads. Okay. After that, it is asking us for the status of this campaign. Like the campaign is going to be in the active mode or the campaign is going to be in the draft mode. So I'm selecting the active mode right now. After that it is actually giving us the three type of options for the scheduling of this campaign. The first option is run continuously from a start date. तो गाइस देखो होता क्या है, जब आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो इसमें हमारी कुछ कंडीशंस अप्लाइड हो जाती हैं। जैसे आपने यहाँ पे एक सेलेक्ट डेट कर दोगे, लेट सपोज आपने एक डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर दी 17th ऑफ जैन, तो अब ये जो कैंपेन है वो 17th ऑफ जैन से स्टार्ट तो हो जाएगा, बट ये जो कैंपेन है इसकी एक एंड डेट आपने कोई नहीं दी। राइट, इसकी एक एंड डेट, एक एंड की जो डेट होती है उसका मतलब होता है कि ये कैंपेन कंप्लीटली हम
फिनिश कर देंगे, इस कैंपेन को कंप्लीटली हम रोक देंगे इस पर्टिकुलर डेट पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे। अब इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने का फायदा क्या होता है? ये जो ऑप्शंस होते हैं एक्चुअली में इनको बोला जाता है इन्फिनाइट एज ऑप्शंस, ऑलराइट। इनको क्या बोलते हैं? इन्फिनाइट एज कैंपेन्स बोलते हैं। इन्फिनाइट एज कैंपेन्स का मतलब क्या होता है? ये वो कैंपेन्स होते हैं जो आज हमारे चला दिए गए, तो अब जब हम कभी भी चाहें तो इनको हम पॉज कर सकते हैं, जब कभी चाहें हम इनको रिज्यूम कर सकते हैं। और अगर हमारे आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद भी इस एड अकाउंट में बजट ऐड होगा और इस कैंपेन को आप चलाना चाहोगे तो ये कैंपेन रन हो जाएगा। द नेक्स्ट ऑप्शन इज सेट अ स्टार्ट डेट एंड द एंड डेट। तो यहां पे क्या होता है कि हमें एक स्टार्ट डेट देनी होती है और एक एंड डेट देनी होती है। स्टार्ट डेट पे ये कैंपेन स्टार्ट होगा और एंड डेट पे ये कैंपेन एंड हो जाएगा, और जब आपकी एंड डेट निकल जाएगी तो उसके बाद आप इस कैंपेन को रिज्यूम नहीं कर सकते हो until you have to make the changes in it। और ये चेंजेस आप इसमें नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि ये आपने एक कैंपेन बनाया था जिसकी एक एंड डेट आप ऑलरेडी दे चुके हो, तो अब इस कैंपेन के शेड्यूलिंग भी आप दोबारा से चेंज नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स ये जो कैंपेन की ये ऑप्शन जो होता है स्टार्ट डेट और एंड डेट वाला, ये हम लोग कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इवेंट्स के ऐड के लिए करते हैं, जहां पे हमारा कोई पर्टिकुलर सेल चल रही हो, राइट, या कोई पर्टिकुलर ओकेशन आने वाला हो। लेट सपोज दिवाली की सेल आने वाली है, तो दिवाली की सेल जाहिर सी बात है 4 से 5 दिन के लिए ही चलेगी, जिसमें हमारा जो कैंपेन होगा वो उन्हीं 4-5 दिन के लिए रन करेगा। तो इस तरीके के इवेंट्स या ओकेशनल एड कैंपेन्स के लिए हम ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। The next option is set a start date and end with a budget. This is a very important option actually right here. यहाँ पे आपको एक बजट देना होगा। लेट्स से आई एम गिविंग इट्स 2000 रुपीज, ऑलराइट। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी शेड्यूलिंग करनी होगी एक डेट की। लेट्स सपोज मैंने डेट दे दी 18 और एंड डेट दे दी मैंने 24 जैन, ओके। तो अब समझिएगा यहाँ पे होता क्या है, जब आप यहाँ पे एक स्टार्ट और एंड डेट देते हो विद अ बजट, तो ये लिंक्डइन करेगा क्या, इस एंड डेट और स्टार्ट डेट के बीच में जितने भी दिन होंगे, जस्ट काउंट द डेज बिटवीन द 18 जैन एंड 24 जैन, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ऑलराइट, 7 डेज। तो अब ये करेगा क्या, इन 2000 रुपए को डेली बेसिस पे 7 दिनों में डिवाइड कर देगा, ऑलराइट। ये करेगा क्या, 2000 रुपए को डेली बेसिस पे 7 दिनों के हिसाब से डिवाइड कर देगा, और उसमें डिवाइड करने के बाद ये क्या करेगा, पर डे का जो बजट होगा वो ईच डे के लिए अलॉट कर देगा। लेट सपोज 2000, अगर यही डेज हमारे 4 दिन होते, ये जो हमारी स्टार्ट डेट और एंड डेट अगर मान लेते हैं 18 से मैंने इसको कर दिया होता 22, तो ये 18, 19, 20, 21, 22 हो जाता, यानी 5 डेज हो जाते। तो जब ये 5 डेज हो जाते तो ये 2000 रुपीज को 5 डेज से डिवाइड कर देता, यानी कि 400 रुपीज अ डे के हिसाब से ये बजट एलोकेट कर देता इस पूरे कैंपेन का, ऑलराइट। तो ये तीनों ऑप्शंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप इनमें से अपने कैंपेन के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। आई एम सेलेक्टिंग रन कॉन्टिन्यूअसली फ्रॉम स्टार्ट डेट फॉर राइट नाउ। आफ्टर दैट यू कैन save this campaign group, all right, like I had already told you, because like we have the 2 already created campaign groups, so I'm not creating this campaign group right now, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास एक डिफॉल्ट कैंपेन ग्रुप भी बना हुआ है और एक पुष्पेंद्र द्विवेदी एड्स कैंपेन ग्रुप भी बना हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, हमने अपना कैंपेन ग्रुप बना लिया, अब हमें अपने कैंपेन ग्रुप के अंदर जाना है। कैंपेन ग्रुप के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप अपने कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो कैंपेन आप क्रिएट करोगे वो कैंपेन कैसे होंगे, क्या होगा, उसके लिए आगे समझते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट कैंपेन का, इस पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कि आप अपना कैंपेन ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए। लेट सपोज हमारे पास अभी केवल एक कैंपेन ग्रुप बना हुआ था पुष्पेंद्र द्विवेदी एड्स का, तो इसने सिर्फ वही एड जो कैंपेन ग्रुप है
उसका ऑप्शन हमें दिखाया। अगर वहीं पे हमारे और मल्टीपल कैंपेन ग्रुप्स बने होते तो यहाँ पे वो हमको सबका एक लिस्ट दिखा देता और बोलता कि कौन से कैंपेन ग्रुप के लिए आपको एक कैंपेन बनाना है। सो हमारे पास एक ही है तो हम बाय डिफॉल्ट इसी को सेलेक्ट करेंगे। ओके, अब आती है थोड़ी सी जरूरी चीज कि हमारे कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारी 3 कंडीशंस पे डिपेंड करता है। लेट्स सपोज हमको अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए अवेयरनेस चाहिए तो हम ब्रांड अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव लेंगे। अगर हमें उसके लिए कंसिडरेशन चाहिए यानी ऑडियंस को इंटरेस्टेड बनाना है, इंटरेस्टेड बनाने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। एंगेजमेंट है ऑब्जेक्टिव, वीडियो व्यूज है ऑब्जेक्टिव, और वेबसाइट विजिट्स यानी कि ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव है। आफ्टर दैट अगर हमें सेल्स चाहिए तो हम कन्वर्जन वाले ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करेंगे, जैसे लीड जनरेशन, वेबसाइट कन्वर्जन्स एंड जॉब एप्लीकेंट्स। ऑलराइट, सो एट द मोमेंट आई एम टेकिंग द वेबसाइट विजिट्स एज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव। ओके सो गाइस, हमने वेबसाइट विजिट को कैंपेन ऑब्जेक्टिव के तौर पे ले लिया है और हमारा एड सेट लेवल ओपन हो चुका है। ऑलराइट, तो एड सेट लेवल को थोड़ा गौर से देखिएगा। ये हमारा एड सेट लेवल है। देखिए यहाँ एड सेट लेवल में आपको ऑडियंस सिलेक्शन करना होता है। एड सेट लेवल में हमारा सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कैंपेन के लिए वो यही होता है कि हमें अपनी टारगेटिंग ऑडियंस डिफाइन करनी होती है। अब टारगेटिंग ऑडियंस डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है बायर पर्सोना का। बायर पर्सोना के लिए मैं एक लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा, वो आपको मिल जाएगा। उस लिंक से जाके आप मेरा एक दूसरा वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने बायर पर्सोना एक्सप्लेन किया हुआ है। तो विदाउट क्रिएटिंग द बायर पर्सोना यू कांट टारगेट योर एड्स टारगेटिंग ऑडियंस। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं अपनी ऑडियंस के साथ। तो सबसे पहला हमारे पास ऑडियंस में दिया हुआ है यहाँ लोकेशन। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, अपनी ऑडियंस के लिए लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूं कानपुर। ओके, सो कानपुर के जितने भी ऑप्शंस थे, कानपुर उत्तर प्रदेश इंडिया, कानपुर नगर और कानपुर देहात, तो इनमें से जो लोकेशन आपको सेलेक्ट करनी है, आई एम सेलेक्टिंग द कानपुर, आप सेलेक्ट कर सकते हो। द नेक्स्ट लोकेशन आई एम सेलेक्टिंग इज इलाहाबाद। द नेक्स्ट लोकेशन आई एम सेलेक्टिंग इज वाराणसी। ओके, सो 4 लोकेशंस मैंने सेलेक्ट कर ली हैं, होल इंडिया, कानपुर, इलाहाबाद एंड वाराणसी। Okay, now there is an another option here, locations, recent और permanent location. Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि recent और permanent location का ऑप्शन दिया हुआ है और permanent location का ऑप्शन दिया हुआ है। इन दोनों ऑप्शंस का मतलब क्या है देखिएगा गौर से। रिसेंट और परमानेंट लोकेशन का मतलब होता है वो ऑडियंस जो रिसेंटली इन पर्टिकुलर लोकेशंस में आई है। जैसे कि हमारे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपने पर्टिकुलर एग्जाम्स देने जाते हैं, किसी का कोई एग्जाम लगा होगा गवर्नमेंट जॉब का, या कोई घूमने के लिए गया होगा, कोई ट्रैवल कर रहा होगा, कोई किसी ओकेशनली वहां पे पहुंचे होंगे इन पर्टिकुलर लोकेशंस में। जैसा कि यहाँ डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, पीपल हु रिसेंटली विजिटेड और परमानेंटली लिव और वर्क इन द सेलेक्टेड लोकेशंस। लाइक कुछ मजदूर होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर से बाहर जाके काम करते हैं। तो इस तरीके की जो ऑडियंस है जो वहां की परमानेंट नेटिव भी हो सकती है और वहां पे हमारे रिसेंटली विजिटेड पर्सन भी हो सकते हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके की ऑडियंस को ऐड दिखाना है नहीं। अगर आपका कोई ट्रैवल का बिजनेस है, अगर आपका कोई होटल है, अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है, राइट, जो आपका ऐसी जगह पे है, ऐसी सिटी के ऐसी पॉश इलाके में है जहां पे ट्रैवलर्स बहुत सारे आते हैं, जहां पे विजिटर्स बहुत सारे आते हैं। लेट्स सपोज, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ वाराणसी। वाराणसी में मंदिर बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग वहां पे विजिट करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, राइट। और वहां पे अगर आपका कोई होटल है, जाहिर सी बात है जब कोई बंदा जाएगा घूमने तो वो होटल में रुकेगा ही रुकेगा। अब वहां पे जब बंदा रुक रहा है तो उसको वहां पे उस होटल के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आपका कोई होटल है और आप ऐड चलाना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। इससे होगा क्या, जो भी बंदे वहां पे विजिट करने वाले हैं या जो भी बंदे वहां पे विजिट कर रहे हैं, रिसेंटली विजिटेड हैं, उन सबको आपके होटल का ऐड दिखा देगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज परमानेंट लोकेशन। नाउ परमानेंट लोकेशन क्या होता है, परमानेंट लोकेशन का मतलब होता है जो वहीं के नेटिव्स हैं। अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो वहीं के नेटिव्स कर सकते हैं, लेट्स सपोज मेरा एक वेबसाइट डिजाइनिंग का इंस्टीट्यूट है, मैं वेबसाइट डिजाइन करना सिखाता हूं
और जो मेरा कोर्स होगा वो लास्ट करेगा 6 महीने के लिए, यानी कि मेरा कोर्स पूरे 6 महीने तक चलेगा। तो जो बंदा वहां का नेटिव नहीं है वो जाहिर सी बात है कानपुर, इलाहाबाद या वाराणसी आके कोर्स तो नहीं करने वाला ना। तो अगर हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस है जो वहां के सिर्फ नेटिव्स ले सकते हैं, जैसे कोई इंस्टीट्यूट, कोई कोर्स, कोई वीडियो कोर्स, ऑलराइट, या फिर कोई ऐसी चीज जो आपके वहां के नेटिव्स ही यूज कर सकते हैं, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हो, ये परमानेंट लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, ओके, सो हमने लोकेशन सेलेक्ट कर ली। आफ्टर सेलेक्टिंग द लोकेशन वी हैव टू गो टू द टारगेट ऑडियंस। ऑलराइट, अब यहाँ पे आप देख रहे हो हु इज योर टारगेट ऑडियंस। तो यहाँ पे दो तरीके के ऑप्शंस हमको मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज नैरो, द सेकंड वन इज एक्सक्लूड। फर्स्टली लेट मी टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नैरो। जब आप नैरो पे क्लिक करोगे तो आपके पास दो तरीके की एट्रीब्यूट्स आते हैं। पहला आता है ऑडियंस, नेक्स्ट आता है ऑप्शन ऑडियंस एट्रीब्यूट्स का। तो अब लिंक्डइन के ऑडियंस और ऑडियंस एट्रीब्यूट्स के बारे में समझना थोड़ा केयरफुल तरीके से। अब यहाँ पे हम ऑडियंस पे आए तो यहाँ पे ये हमसे पहले तो बोल रहा है कि कुछ ऑप्शन दे रहा है जैसे लिस्ट अपलोड, लुक लाइक, अदर्स, रीटारगेटिंग, थर्ड पार्टी। तो इनके ऑप्शंस तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्यों, क्योंकि ये हमारे थोड़े एडवांस लेवल की मार्केटिंग है, ये थोड़े एडवांस लेवल के एड मैनेजर है। इनके मैं दूसरे वीडियोस बना दूंगा कि इन ऑडियंस का मतलब क्या होता है और इनको कैसे टारगेट करना है, कैसे ये फाइल्स वगैरह बनानी होती हैं इनमें कुछ। फर्स्टली लेट मी नो टेल यू अबाउट द ऑडियंस एट्रीब्यूट्स। ये जो एट्रीब्यूट्स वाली होती है ना टारगेटिंग, ये हमारी दो टर्म्स के बेसिस पे होती है। एक होती है इंटरेस्ट, एक होता है बिहेवियर, कि हमारी ऑडियंस के इंटरेस्ट क्या है और उनका बिहेवियर किस तरीके का है उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अब यहाँ पे जो बिहेवियर होगा वो हमारे लिंक्डइन को लेके होगा कि लिंक्डइन पे ये ऑडियंस किस तरीके का बिहेव कर रही है, कैसे कंटेंट पे इंगेज होती है, किस तरीके के कंटेंट को लाइक करती है, किस तरीके के कंटेंट को स्क्रॉल करके इग्नोर करती है, ऑलराइट, किस तरीके के एड्स पे ये इंगेज हो रही है, किस तरीके के एड्स पे इनसे से ज्यादा आरओआई जनरेट हो रहा है। तो ये सारा जो होता है वो लिंक्डइन क्या करता है, इनके बिहेवियरल एस्पेक्ट को कैलकुलेट करता है इन सारी एक्टिविटीज से। तो ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में हमें क्या करना है, हमें ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में जाना है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कंपनी, मतलब आप यहां पे किसी पर्टिकुलर कंपनी के एम्प्लॉयज को या उनके बिजनेस पार्टनर्स को टारगेट कर सकते हो। डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स का मतलब होता है एज, लोकेशन, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स, ऑलराइट। एजुकेशन, कि उनका एजुकेशन लेवल क्या है। जॉब एक्सपीरियंस, कि वो फ्रेशर होंगे, 3 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस होंगे, 8 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस होंगे, या इंटर्न्स होंगे या स्टूडेंट्स होंगे, तो उनके एक्सपीरियंस लेवल पे आप यहां से टारगेट कर सकते हो। इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स, यानी कि वो इंटरेस्ट किस चीजों में रखते हैं, कि अगर कोई, जैसे कि कई सारे लोग होते हैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में रखते हैं कि लाइक आई एम अ डिजिटल मार्केटर, लेट्स सपोज मेरी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसमें लिखा हुआ है कि आई लव टू प्ले क्रिकेट, ऑलराइट। सो यहां से मैं क्रिकेट को चूज कर सकता हूं, या इंटरेस्ट में मैंने डाला हुआ है कि मैं डिजिटल मार्केटर तो हूं बट आई लव टू लर्न कोडिंग, तो मुझे कोडिंग में भी इंटरेस्ट है। तो जो कोडिंग वाला कोई बंदा होगा, एडवर्टाइजर होगा, वो मुझे टारगेट कर सकता है इंटरेस्ट के बेसिस पे। कौन सा इंटरेस्ट, कोडिंग का इंटरेस्ट, ऑलराइट। सो लेट मी टेल यू फर्स्ट द ऑप्शन ऑफ कंपनी। हम कंपनी के अंदर गए तो हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज आ रही हैं। अब इन्हीं कैटेगरीज के बेसिस पे आप ये समझ जाओगे कि कितनी डीप टारगेटिंग होती है किसी भी लिंक्डइन एड के अंदर, ऑलराइट। कंपनी के अंदर आए हैं, कंपनी के अंदर कंपनी की कैटेगरी बता सकते हैं हम, कंपनी के कनेक्शंस बता सकते हैं, कंपनी के फॉलोअर्स बता सकते हैं, यानी कि उस कंपनी के ही एम्प्लॉयज को ऐड दिखाओ जिसके 5000 प्लस फॉलोअर्स हैं, या जिसके 1000 प्लस फॉलोअर्स हैं, जिसके 500 प्लस कनेक्शंस हैं। इस कंपनी के फॉलोअर्स के बेसिस तक पे आप ऐड को टारगेट कर सकते हो। कंपनी का ग्रोथ रेट क्या है, कंपनी की इंडस्ट्री क्या है, कंपनी का नेम क्या है, कंपनी का साइज क्या है। अब इसके आगे जब आप जाओगे तो इसके आगे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। लेट्स सपोज कैटेगरी में आप गए, कैटेगरी में जाके आप यहाँ पे कई सारी कैटेगरीज आपको मिलती हैं, राइट। तो इन सारी कैटेगरीज में जाके आपको क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि वो कंपनी कौन से कैटेगरी के है। उस कैटेगरी की जितनी कंपनीज को आप सेलेक्ट करोगे
वो सारी कैटेगरी वाइज आपके कंपनीज का डेटा यहाँ पे दिखा देगा। अब ये फोरकास्टेड रिजल्ट क्या होता है, इसको पूरा भी एक्सप्लेन करता हूँ। पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ ये सारी चीजें क्या होती हैं। फिर आता है कंपनी कनेक्शंस। तो कंपनी कनेक्शंस में आता है कि कंपनी किससे किन किन लोगों के साथ कनेक्टेड है। सपोज यहाँ पे मैंने कर दिया एनडीएमआईटी, ऑलराइट। तो एनडीएमआईटी के साथ कोई कंपनी यहाँ पे ऐसा कोई कनेक्टेड नहीं है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे किया टाटा। तो जैसे ही मैंने टाटा डाला तो यहाँ पे टाटा ग्रुप का दिखा रहा है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिस है, 10,001 प्लस एम्प्लॉइज हैं, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील्स। तो इनकी कंपनी के जितने कनेक्शंस थे वो सारे कनेक्शंस इसने यहाँ पे शोकेस कर दिए। अब इनकी कंपनी के उन एम्प्लॉइज को आप टारगेट, उन ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो। ओके, तो इसी तरीके से हमारे आगे भी ऑप्शंस है कंपनीज के, इसको आप अपने हिसाब से फिर और थोड़ा डिस्कवर करिए। और अगर कोई डाउट्स होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या मैं अपना मेल ड्रॉप कर दूंगा, आप मुझे मेल में भी वहां पे सेंड कर सकते हो। द नेक्स्ट ऑप्शन इज डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में आप इसका एज सेलेक्ट कर सकते हो, इनकी जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो। लेट मी सेलेक्ट द एज, लाइक द एज विल बी 18 to 24, alright. Okay, now the gender will be male and female both. After that, you have to select the education level. Let me select the degree MBA. Okay, executive MBA जिन्होंने किया हो मेरा ऐड उनको दिखाए। Alright, after that you can select the field of study, like field of study marketing. Okay, so जो marketing सीख रहे हो उनको मेरा ऐड दिखाए। एंड द मेंबर स्कूल, सो मेंबर स्कूल में आप यहाँ पे कर सकते हो IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर। तो जो भी कॉलेजेस आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो वो कॉलेज आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। मैंने IIM सिलेक्ट कर लिया। आफ्टर दैट यू कैन सेलेक्ट द जॉब एक्सपीरियंस एज वेल, ऑलराइट। तो जॉब एक्सपीरियंस में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि जॉब फंक्शंस क्या होंगे। अब जॉब फंक्शंस में यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो बंदा किन किन तरीके से कौन कौन सी जॉब्स करता है, लाइक वो अकाउंटिंग जानता हो, ऑलराइट, वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स जानता हो, आर्ट एंड डिजाइन में हो या बिजनेस डेवलपमेंट में हो। आई एम सेलेक्टिंग दिस कैजुअली ऑप्शंस, ऑलराइट। So you have to select the options according to your bar persona. I am selecting the casually options right here, right now. Okay. After that, after selecting the job functions, you can select the job seniorities as well. You can select the job titles as well. You can target on the basis of members' skills. Like, let me show you which type of skill. The person who know coding as well, right? The person who know Java or HTML as well, and the person who know Tally as well, Tally ERP. So you can target the audience on the basis of these type of skills also, all right. And the years of experience, like कितने सालों से वो बंदा काम कर रहा है, कितना years का उसको experience है। तो ये तो normal सी चीजें हैं, तो हमको भी पता है कि वो experience के basis पे आप उसको target कर सकते हो। After that we have the option to select the audience on the basis of interest and traits. Let's see this. Members group, members interest and members traits. ग्रुप्स का मतलब है कि वो कौन किन किन तरीके के ग्रुप्स पे उसने ज्वाइन किया हुआ है। लेट्स सपोज आई हैव टू टारगेट द एसईओ एग्जीक्यूटिव्स। तो जो भी एसईओ एग्जीक्यूटिव होगा वो एसईओ के कुछ ना कुछ ग्रुप्स में तो ज्वाइन होगा ही। जो भी सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव होगा, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होगा, वो डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप्स में ज्वाइन होगा, ऑलराइट। जो भी हमारा अकाउंटिंग से रिलेटेड या अकाउंटेंसी से रिलेटेड प्रोफेशनल होगा वो हमारे सीए, अकाउंटेंसी या कॉमर्शियल ग्रुप्स के साथ अटैच्ड होगा, कॉमर्शियल ग्रुप्स में ज्वाइन होगा। तो हम उनको ग्रुप्स के बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं। मेंबर्स इंटरेस्ट, अब मेंबर्स इंटरेस्ट के हिसाब से आप वहां पे टारगेट कर सकते हो कि वो बिजनेस एंड मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हो, ठीक। तो बिजनेस एंड मैनेजमेंट के अंदर भी देखो बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे अकाउंटेंसी है, राइट। यहाँ पे कैश फ्लो मैनेजमेंट है। अब अकाउंटेंसी के अंदर भी देखो और ऑप्शंस मिल गए हमको, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कैश फ्लो मैनेजमेंट, क्लाउड अकाउंटिंग, पे रोल, टैक्सेशन इन बिजनेस। आई एम सेलेक्टिंग द ऑप्शन ऑफ टैक्सेशन इन बिजनेस। अब टैक्सेशन इन बिजनेस के अंदर भी देखो एक आया कॉर्पोरेट टैक्स का, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपने इंटरेस्ट और ट्रेड्स के बेसिस पे भी इनको टारगेट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे मैंने जितने भी ऑप्शंस देखो टारगेट किए हैं उन सबका यहाँ पे एक ओवरव्यू दिखा रहा है। तो इन ओवरव्यू के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अपनी ऑडियंस को एक बार चेक कर सकते हो कि हाँ मैंने अपने बार पर्सोना के अकॉर्डिंगली पूरी ऑडियंस को टारगेट कर लिया है या नहीं। After selecting these audiences, you can have the option of exclude.
अब जितने भी अभी तक हमने टारगेटिंग की, सेम फॉर्मेट में हमको एक्सक्लूड करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे हमने जैसे ही एक्सक्लूड पे क्लिक किया तो देखो यहां पे हमारे पास ये ऑप्शन फिर से आ गए। इसका मतलब ये जो ऑडियंस आप ऊपर अभी टारगेट करके आए हो, अगर आपको इनमें से कोई ऑडियंस का पार्ट हटाना है टारगेटिंग में से, तो आप उस ऑडियंस को यहां पे दे सकते हो। ऑलराइट, तो यहां पे आप जो भी बंदों को सेलेक्ट करोगे वो बंदे ऊपर वाली ऑडियंस से माइनस कर दिए जाएंगे, यानी हटा दिए जाएंगे। ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सक्लूड एनी टाइप ऑफ ऑडियंसेस फ्रॉम दिस। ओके, इसके बाद एक ऑप्शन आपको मिलता है इनेबल ऑडियंस एक्सपेंशन। तो इसको मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको आप चेक कर दो। क्यों? क्योंकि इससे ये होगा कि लिंक्डइन फिर अपने हिसाब से थोड़ा सा देखेगा कि हाँ, अगर आपका ऐड थोड़ा बहुत कहीं कम ज्यादा कम बेशी हो रही होगी, तो लिंक्डइन क्या करेगा, आपके ऐड की रिजल्ट्स को इंप्रूव करने के लिए आपकी ऑडियंस एक्सपेंशन को बढ़ा देगा। लाइक लिंक्डइन को अगर लगेगा कि हाँ, इसकी ऑडियंस थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ा देनी चाहिए और रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, तो वो उसके लिए क्या करेगा, आप उसको परमिशन कर रहे हो एक तरीके से। इसको चेक करके आप लिंक्डइन को परमिशन दे रहे हो कि अगर आपको लगता है कि मेरे ऐड का रिजल्ट इंप्रूव हो सकता है ऑडियंस एक्सपैंड करने से, तो आप कर सकते हो। ऑलराइट, सो यू हैव टू चेक बॉक्स दिस ऑप्शन। आफ्टर दैट वी आर गेटिंग द एड फॉर्मेट। ऑलराइट, तो ये एड फॉर्मेट क्या है समझिएगा गौर से। यहाँ पे आप अपने एड का एक फॉर्मेट सेक्शन दे रहे हो यहाँ पे, कि ऐड हमारा किस तरीके से दिखेगा। आप एक सिंगल इमेज ऐड दे रहे हो, कैजुअल इमेज ऐड दे रहे हो, वीडियो ऐड दे रहे हो, टेक्स्ट ऐड होगा या स्पॉटलाइट ऐड होगा। स्पॉटलाइट में क्या होता है, स्पॉटलाइट ऐड जो होते हैं वो बेसिकली जॉब्स के लिए चलते हैं, कि अगर आप एक बंदे हो, आपको जॉब चाहिए और आप कंपनीज तक टारगेट कराना चाहते हो वो न्यूज, तो आप क्या कर सकते हो, स्पॉटलाइट ऐड एक चला सकते हो। राइट, इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट तरीके के ऐड सेक्शंस होते हैं। तो आई एम सेलेक्टिंग द सिंगल इमेज ऐड। ओके, after that you can select the placement options here. all right, तो यहाँ पे इनेबल द लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क दिया हुआ है, तो ये ऑडियंस नेटवर्क को आप चला सकते हो। प्लेसमेंट में क्या है कि लिंक्डइन जो होता है वो ऑडियंस नेटवर्क के हिसाब से प्लेसमेंट सेलेक्ट करता है। तो गाइस हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन दिया होता है बजट एंड शेड्यूल का। तो बजट एंड शेड्यूल में आप आते हो तो यहाँ पे आपके पास तीन तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं। सेट बोथ अ डेली एंड लाइफ टाइम बजट, सेट अ डेली बजट एंड सेट अ लाइफ टाइम बजट। तो देखिए इन तीनों ऑप्शंस का जो रोल है वो अलग अलग टाइप के कैंपेन्स में होता है। ऑलराइट, अभी मैं आपको सेट अ डेली बजट बता रहा हूँ। ठीक है, सेट अ डेली एंड लाइफ टाइम बजट हमारा लीड जनरेशन या फिर हमारा तब यूज करते हैं जब हमारा एक टाइट बजट होता है क्लाइंट का, कि भाई मैं 20,000 से ऊपर एक बजट पे खर्च नहीं कर सकता और उसमें आपको परफेक्ट रिजल्ट्स भी लाने होते हैं। तो वो रिजल्ट्स हमारा एक फोरकास्टेड रिजल्ट के बेसिस पे निकलता है। ऑलराइट, तब हम लोग डेली और लाइफ टाइम बजट यूज करते हैं। लाइफ टाइम बजट का केस क्या होता है, लाइफ टाइम बजट में हम लोगों को बस एक बजट दे देना होता है लिंक्डइन को। अब उस बजट को अपने हिसाब से डेली बेसिस पे लिंक्डइन खुद खर्च कर लेगा। किसी दिन 2,000 खर्च करेगा, किसी दिन 3,000 खर्च करेगा, और जिस दिन ऑडियंस का अच्छा बिहेवियर हो रहा होगा उस दिन वो एड का बजट और ज्यादा बूस्ट कर देगा, और ज्यादा एग्जॉस्ट कर देगा। राइट, तो सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा रहेगा इन तीनों में? मेरे ख्याल से सबसे बेटर ऑप्शन होगा सेट अ डेली बजट। सेट अ डेली बजट का सबसे बेटर ऑप्शन किस लिए है, क्योंकि जब डेली बेसिस पे आपका एक स्पेंड का बजट आप लगा दोगे कि 2,000 रुपए खर्च करने हैं या 1,000 रुपए खर्च करने हैं, तो डेली बेसिस पे आप उस एड पे नजर भी रख पाओगे। और डेली बेसिस पे जब आप उस एड को एनालाइज करोगे तो डेली बेसिस पे आप उसको ऑप्टिमाइज करते जाओगे, जिससे रिजल्ट्स के इंप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट्स व्हाई आई प्रेफर टू सेट अ डेली बजट। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है हमारे पास, शेड्यूलिंग रन कैंपेन कॉन्टिन्यूसली। सो आई विल प्रेफर यू टू रन कैंपेन कॉन्टिन्यूसली, कि आप रन कैंपेन कॉन्टिन्यूसली का ही ऑप्शन सेलेक्ट करो। क्यों? क्योंकि देखो इसमें आपको बस एक स्टार्ट डेट देनी होती है और एक कैंपेन स्टार्ट हो जाता है। अगर आप एक एंड डेट दे दोगे तो उसके बाद आप इस कैंपेन को यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने लिंक्डइन को बता दिया कि भैया इस दिन के बाद मैं इस कैंपेन को बंद कर दूंगा और ये कैंपेन इसके बाद नहीं चलेगा। बट अगर आपने रन कैंपेन कॉन्टिन्यूसली लिखा हुआ है तो आज आप इस कैंपेन को भले बंद कर दो, बट आने वाले 2 साल बाद अगर आपकी डेजिग्नेशन पे अगर कोई और बंदा इस कैंपेन को रन करना चाहेगा तो वो सिंपली इसमें कुछ छोटे माइनर ऑप्टिमाइजेशंस करके इसको दोबारा से चालू कर सकता है।
तो इसलिए रन कैंपेन कॉन्टिन्यूसली का ऑप्शन सबसे बेटर ऑप्शन होता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है बिडिंग का। तो देखिए बिडिंग जो होती है वो हमारी तीन तरीके की होती है। पहली होती है मैक्सिमम डिलीवरी, जिसमें हमको वॉल्यूम ज्यादा मिलता है। अगर आपको क्लिक्स चाहिए तो मैक्सिमम डिलीवरी का ऑटोमेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इससे फायदा क्या होता है, अगर आपको क्लिक्स चाहिए तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स मिलेंगे, अगर आपको लीड्स चाहिए तो आपको ज्यादा से ज्यादा लीड्स मिलेंगे। यानी कि ये आपके एड के जो भी रिजल्ट है, जो भी केपीआई है, अगर आपका लीड जनरेशन ऐड है तो आपकी लीड की केपीआई होगी, तो ये लीड के रिजल्ट का वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करेगा। अगर आपकी क्लिक्स हैं तो ये क्लिक्स का वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करेगा। टारगेट कॉस्ट में क्या होता है, आप एक रेंज देते हो लिंक्डइन को। लिंक्डइन क्या करेगा, फिर उस रेंज के अंदर में ही आपकी लीड कॉस्ट या फिर आपकी लिंक की जो आप जैसे ट्रैफिक का अगर यहाँ पे ऐड चल रहा है तो हमारा एक क्लिक की जो कॉस्ट होगी वो इसी रेंज के अंदर लेके आएगा। अगर मैं लीड जनरेशन ऐड चलाऊंगा तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टारगेट कॉस्ट सेट होगी और फिर वो उस लीड की कॉस्टिंग को उस पर्टिकुलर टारगेट कॉस्ट के बीच में लाने की कोशिश करेगा। ऑलराइट। मैनुअल बिडिंग क्या होती है, देखिए बिडिंग का ऑप्शन क्या होता है कि इसी ऑडियंस को यूज करके आपकी तरह बहुत सारे मार्केटियर्स चला रहे होंगे, राइट। तो लिंक्डइन यहां पे कह रहा है आपसे कि भैया हमको एक अपनी बिडिंग बता दो जिसके बेसिस पे और आपके एड के ऑप्टिमाइजेशन के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर लेंगे कि आपका एड हम किस समय पे या किस रैंकिंग पे बूस्ट करें। अब इसकी बिडिंग कैसे होती है, इसका जो ऑप्शन होता है सोशल मीडिया का वो गूगल एडवर्ड से कैसे अलग होता है, इन सारी चीजों का वीडियो मैं एक अलग पर्टिकुलर बना दूंगा, उसमें मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे ये ऑप्शन वगैरह वर्क करती है। ऑलराइट। तो अभी मैं उस ऑप्शन के पॉइंट पे नहीं जा रहा हूं, अभी बस ये बता रहा हूं कि मैनुअल बिडिंग होती क्या है। अगर आप एक मैनुअल बिडिंग लगाओगे तो मैनुअल बिडिंग जो होती है वो एडवर्टाइजर्स के यानी लिंक्डइन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। आपने यहाँ पे बताया लिंक्डइन को कि भैया मैं आपको पर लैंडिंग पेज क्लिक के लिए 300 रुपए देने को तैयार हूं। वहीं दूसरा एडवर्टाइजर होगा जो आप उस लैंडिंग पेज क्लिक के लिए 350 रुपए देने को तैयार होगा। तो लिंक्डइन क्या करेगा, आपको वो ट्रैफिक ट्रांसफर ना करके पहले वो उस 350 रुपए वाली बिडिंग के एडवर्टाइजर को वो ट्रैफिक ट्रांसफर करेगा। ऑलराइट। इसका मतलब अब वो ट्रैफिक ट्रांसफर कैसे करेगा, वो ट्रैफिक ट्रांसफर करने के लिए कुछ नहीं, वो बस आपका एड पहले ना बूस्ट करके वो आपके कॉम्पिटिटर का एड पहले बूस्ट कर देगा। दैट्स वाई यहाँ पे मैनुअल बिडिंग रखी जाती है। ऑलराइट। तो यहाँ पे इसने आपको एक मिनिमम बिड की कॉस्ट भी बता दी है कि भैया 249.85 इसकी मिनिमम बिड है। अब इसके ऊपर आपको रखना ही रखना है, 249.85 से नीचे आप नहीं लेके जा सकते हो। ऑलराइट। तो ये तीनों ऑप्शंस मैंने बताए। मेरे हिसाब से अगर आप एक केपीआई बेसिस पे ऐड चला रहे हो तो मैक्सिमम डिलीवरी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है कन्वर्जन ट्रैकिंग का। तो देखिए कन्वर्जन ट्रैकिंग जो होती है वो हमारी ज्यादातर एक एडवांस लेवल में आ जाती है। ऑलराइट। इसमें हम कन्वर्जन्स बनाते हैं कि हमारे लिए शॉप करनी है या ट्रैफिक लाना है या फिर लीड लानी है या फिर हमारे लिए एक मैसेज आना चाहिए, तो उसके लिए हम अलग अलग कन्वर्जन्स बनाते हैं। इसका मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ओके तो हमने अपना कैंपेन ग्रुप सेटअप कर लिया, हमने अपना कैंपेन सेटअप कर लिया। अब हमको अपना ऐड बनाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दो एड्स बना के रखे हुए हैं, उन्हीं एड्स को ये यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर रहा है। तो आपको ऐड बनाने के लिए कुछ नहीं करना, ऊपर एक क्रिएट न्यू ऐड का ऑप्शन दिया हुआ है। ऑलराइट। तो यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे आपको अपने ऐड का नाम दे देना है, लेट्स से XYZ। यहां पे आपका आता है ऐड का इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट। तो देखिए इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट जो होता है वो आपके ऐड का एक, कह सकते हो आपकी जो आपका ऐड है, राइट, जो आपका ऐड होने वाला है उसका इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट टेक्स्ट क्या होगा, मतलब जब वो बंदे को ऐड दिखाएगा तो उसका एक इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट दिखाना चाहिए वहां पे। जैसे आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो आपकी कॉपी राइटिंग या आपका कैप्शन या फिर आपका राइटअप। ऑलराइट। तो इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट में मैं लिख देता हूं ABCD dot dot dot. After that you have to give your website or landing page URL here. Let's say this is okay. फिर उसके बाद आप यहां से एक अपनी एड कॉपी अपलोड कर सकते हो। तो मैंने ये एड कॉपी अपलोड कर दी। ओके मैंने यहाँ पे दे दी हेडलाइन, यहाँ पे दे दिया मैंने MNBVCX एंड क्वेटी, ये मैंने दे दिया अपना डिस्क्रिप्शन,
and after that you have to select a call to action button here. Let's say download, or let's say apply. Then you just have to click on create. अब यहां पे देखिए आपने 3 एड्स बना दिए हैं, ठीक है। ओके सो गाइस, हमारा एड क्रिएट हो चुका है। अब तो अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं। हमारा जो ये ऐड है, इन तीनों में से, तीनों ऐड इमेजेस में से वो क्या करेगा, अपना एक बेटर ऐड इमेज, ऐड कॉपी जो है उसको सेलेक्ट कर लेगा और हमारे ऐड को लाइव कर देगा। नाउ यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब ये हमको एक ऑप्शन देगा रिव्यू करने का, यानी जो भी आपने कैंपेन ग्रुप से लेके अभी तक डिजाइन किया है अपने ऐड कॉपी में, ऐड में, उसको एक बार रिव्यू कर लो। तो आफ्टर रिव्यूइंग योर एड यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट, और जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे आपका लिंक्डइन एड कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे।